Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 10, continuation of 4th chapter, magnetic effect of electric current. Today we are going to discuss about very important topic, force on a moving charge particle and what will happen when a force is acting on a moving charge particle when the charge particle is projected at different angle. So before starting this one, just I want to cover one more topic. These are the 3 topics which I want to cover mainly in today's class. So सबसे पहले ना इसको स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक और है वो मैं बता देता हूँ. So when we consider about the force acting on a charged particle, अब अगर imagine करो Q is a charged particle and this charged particle is an electric field. So then what will act on this? Then electrostatic force will act on this. So F is the electrostatic force. Okay. Suppose if you are taking in a vectorial form, then Fe vector is equal to Qe vector. Similarly, when we consider about charged particle in magnetic field, so when the charged particle is in magnetic field, we have taken Q VB sin theta. Correct? If you remember, in last class we introduced this particular part. So this you imagine as the magnetic force. It's a magnetic force on moving charged particle. Okay, this is in terms of magnitude. If you are taking it in terms of vector, then what will happen? It will be Fm vector is equal to Q is a scalar quantity, velocity and magnetic field are vector quantity. As I said, कि V vector will cross B vector, the velocity will crosses this magnetic field. Which one will exist first? Magnetic field will exist first. Then velocity will come later. So जो बाद में वेक्टर आएगा उसको आप पहले लिखोगे, like if I am writing A vector crosses B vector, A vector crosses B vector. It means that B vector is already at a particular place. Like B vector यहाँ पे है और ये A vector है. A vector crosses B vector in the sense पहले B vector जहां पे होगा उस जगह पे A vector पहुंचने की कोशिश करेगा. You can imagine in that way. In simplest term I am saying. हाँ साइंटिफिक टर्म में जाएंगे तो और भी इसके मीनिंग्स है, बट सिंपलेस्ट टर्म में B already existing and A is going to reach to that place. So A crosses B. इसका मतलब ये हो गया. तो यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी है सिस्टम में, उसमें चार्ज पार्टिकल को आपने वेलोसिटी प्रोवाइड किया, तो वेलोसिटी विल कम लेटर. इसके लिए हमने पहले लिखा है और जो पहले आता है उसको बाद में लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इन दैट वे. सो ये क्या हो जाएगा V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. क्लियर? अभी क्या कह रहे हैं कि ये है मूविंग चार्ज पार्टिकल पे या चार्ज पार्टिकल पे फोर्स है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडिविजुअली. अगर आप इमेजिन करो कि दोनों फोर्सेस एट अ टाइम एक्ट हो रहे होंगे तो क्या होगा? इफ बोथ द फोर्सेस एक्टिंग एट अ टाइम, सो F वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? Force acting on charged particle because of electric field, force acting on charged particle because of magnetic field. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है? ये Q E वेक्टर प्लस मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कॉमन ले सकते हैं. किसको कॉमन ले सकते हैं? वी कैन टेक Q कॉमन. तो ये ब्रैकेट में क्या हो गया? E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. क्लियर? ये हो गया आपका रिजल्टेंट फोर्स या फाइनल फोर्स. अच्छा, इस फोर्स को हम क्या कंसिडर करते हैं? इट इज कॉल्ड एज द लोरेंज फोर्स. इट इज कॉल्ड एज द लोरेंज फोर्स. इज दैट क्लियर? और अगर उसमें से सिर्फ हम इस फोर्स की बात करें तो इट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स. इसको आप कंसिडर करोगे मैग्नेटिक लोरेंज फोर्स. ठीक है? और हमने लास्ट क्लास में इस फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन किया हुआ था कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल. सो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. कभी कभी क्या होता है कि आपको चार्ज पार्टिकल दिया है, दे हैव गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड आल्सो. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बोथ दे हैव गिवन. So in such cases what happens? We have to apply this formula. When there's only magnetic field, then we are going to use this formula. When there's a electric field, we are going to use this formula. But total force when we are finding the force on charged particle in presence of electric field as well as magnetic field, then we are going to use this formula. I hope you people understood this particular part. Now we'll go to the next one. So अब हमें क्या करना है कि लोरेंज मैग्नेटिक फोर्स को ही डिस्कस करना है. ठीक है, तो F इज इक्वल टू QEB sin थीटा से हम स्टार्ट करेंगे. आप वेक्टर फॉर्म से स्टार्ट करो, दैट्स अप टू यू. ठीक है, तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे मेन हेडिंग आप देख लो. मेन हेडिंग के बाद मैंने 3 सब टॉपिक्स लिखे. 3 सब टॉपिक्स आर बेसिकली क्वेश्चंस. इन 3 क्वेश्चंस को हमें कवर करना है. सो जो पहला पार्ट है, सबसे पहले क्या है? व्हाट इज द कंडीशन गिवन? सो एज यू कैन सी इट्स रिटन मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. पहला पॉइंट क्या है उसमें? फर्स्ट पॉइंट, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू
पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड को इनिशियल वेलोसिटी या तो पैरेलल होगा या तो एंटी पैरेलल होगा। सो पैरेलल है इसका मतलब क्या होगा, एंटी पैरेलल इसका मतलब क्या होगा, एंड व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन देयर। सो अब मैं क्या पहले वाले पार्ट को सिंप्लीफाई कर रहा हूं। सो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन आई एम सिंप्लीफाइंग द फर्स्ट पार्ट, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो आप इमेजिन करो कि ना मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये हमारा अजम्पशन है। अब क्या होता है, किसी चार्ज पार्टिकल को आपने उसके पैरेलल में प्रोजेक्ट कर दिया है, तो ये चार्ज पार्टिकल है उसके पैरेलल में जा रहा है, तो हमने ना पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ले लेते हो, ठीक है, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो इस केस में थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। अगर थीटा का वैल्यू 0 है तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा विल बी आल्सो 0, करेक्ट। अब ये क्या कह रहे हैं कि सेम कंडीशन है, मैग्नेटिक फील्ड है एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। अब मान लो हो सकता है चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, एग्जैक्टली अपोजिट। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, दिस इज अ वेलोसिटी वेक्टर, एंड व्हाट्स द एंगल बिटवीन दीस टू, ये एंटी पैरेलल हो गया, तो क्या होगा 180 डिग्री हो गया। एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर साइन 180, साइन 180 की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, या साइन थीटा की वैल्यू इस कंडीशन के लिए 0 हो गया, गॉट इट। सो वेदर इट्स अ 0 एंगल और 180 डिग्री कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस में साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब हमारा टास्क क्या है, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, हमको क्या करना है, फोर्स निकालना है, फोर्स हमें देखना। तो हमने एक फॉर्मूला पहले डिस्कस किया, क्या फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू हमारे पास है Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिया तो फोर्स भी वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को हम एक्सप्लेन करेंगे तो क्या मिलेगा, F इज इक्वल टू ये होगा Q V B साइन थीटा, क्लियर। अब इसमें हमारे पास दो पार्ट है, एक तो जो हमने पैरेलल ले लिया है तो पैरेलल, और दूसरा क्या होगा एंटी पैरेलल, है ना। तो आपने वहां पे डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, तो दोस डायग्राम्स यू कैन ड्रॉ बिलो दीस टू कंडीशन इफ यू वांट। तो पैरेलल के लिए थीटा का वैल्यू 0 है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, वो भी 0 हो गया। तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस, F का वैल्यू हो जाएगा 0, क्लियर। अगर ये एंटी पैरेलल है तो क्या होगा, एंटी पैरेलल में भी देख लेते हैं। तो एंटी पैरेलल में वही हो गया, थीटा का वैल्यू क्या होगा 180 डिग्री, डायग्राम आप वहां पे देख सकते हो, और साइन थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल विल बी 0, गॉट इट। सो बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड वन फैक्ट कि ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है मूविंग चार्ज पार्टिकल के ऊपर, व्हेन द मूविंग चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, देन चार्ज पार्टिकल इज नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनी काइंड्स ऑफ फोर्स, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट, तो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट भी नहीं होगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड इन द लास्ट क्लास ऑल्सो, कि जब हम चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके ऊपर ना चैप्टर के काफी सारे पॉइंट्स है जो कवर होंगे। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू कवर ऑन द बेसिस ऑफ दैट वन। तो 90 डिग्री के केस में क्या होता है और कैसे होता है, दैट विल सी, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हमने कवर कर लिया। अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट में क्या बोला इन्होंने, व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। चलो ठीक है, अब ये अगर समझना है तो हमने क्या किया, वो मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे, करेक्ट। तो अब बोला इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको डिसाइड करना, चलो ठीक है, हमने ऐसा इमेजिन किया कि चलो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल ले लिया, चार्ज पार्टिकल अब यहाँ पे ले लो, कहीं पे कभी कभी लोग यहाँ से स्टार्ट करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने ले लिया पॉइंट ए है मेरे लिए, और चार्ज पार्टिकल इज ट्राइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन, ये चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन है, ये वेलोसिटी वेक्टर, करेक्ट। अब ना थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कैसे हो गया आपको अभी हमें समझना है। तो व्हेन वी कंसीडर अबाउट द थीटा इज 90 डिग्री और व्हेन इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, क्रॉस। क्रॉस का मतलब होगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर और इनवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स हो गया, करेक्ट। तो वेलोसिटी वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अब क्या है हमारे पास वापस है सेम जो है स्टोरी है वही रखेंगे हम सेकंड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो देन यू राइट कि एफ वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, एफ वेक्टर इज व्हाट, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, करेक्ट। एंड व्हाट डू वी गेट देन, हम हमें उसको मैग्नीट्यूड में ले रहे तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर को हम सिंपलीफाई करें तो क्यू वी क्या हो गया, ये साइन थीटा हो गया, क्लियर। सो अब यहां पे क्या हो गया, थीटा का वैल्यू क्या है इस केस में, व्हाट इज द वैल्यू फॉर थीटा, थीटा हमने यहां पे लिया है 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1, क्लियर। एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर फोर्स, सो ये कैपिटल एफ इज इक्वल टू हो गया क्यू वी बी, ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। ये कैपिटल एफ क्या है, कैपिटल एफ इज द मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फोर्स करता क्या है, पहले वाले केस में क्या था, फर्स्ट केस देयर वाज नो मैग्नेटिक फोर्स,
जब आप 0 डिग्री पे प्रोजेक्ट हुआ या 180 डिग्री में पैरेलल और एंटी पैरेलल होता तो कोई फोर्स एक्ट नहीं होता था उसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल के लिए आप ले लो कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कोई पार्टिकल उसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ प्रोजेक्टेड है या अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ फोर्स। बट इस केस में कैसा है कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है रूम के अंदर, यहाँ पे क्लासरूम के अंदर, और कोई पार्टिकल ऐसे एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उस कंडीशन में क्या बोल रहे हैं कि फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। ये हो गया QVB, है ना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स इज व्हाट, मैक्सिमम। आप मैक्सिमम भी बोल सकते हो कि ये मैग्नेटिक फोर्स का होगा, मैक्सिमम होगा, करेक्ट ना। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू अगर 1 हो गई तो उसके साथ में जो भी एसोसिएटेड क्वांटिटी होगी, वी इमेजिन दैट क्वांटिटी इज व्हाट, मैक्सिमम। तो ये मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होगी मैक्सिमम। अब ये मैग्नेटिक फोर्स करेगा क्या, वो देखना हमको। तो हमने ना लास्ट क्लास में किया था पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल का क्या है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। राइट हैंड पाम रूल का क्या क्राइटेरिया है कि अगर आपका राइट हैंड आप इमेजिन करते हो तो फिंगर्स ना आप ऐसे ऐसे करना, आपको यू हैव टू होल्ड इट लाइक दिस, ठीक है, ताकि ना थंब शुड बी परपेंडिकुलर दिस वन, ये 90 डिग्री बनना चाहिए यहाँ पे, क्लियर। व्हेन यू आर गोइंग टू होल्ड योर हैंड लाइक दिस, तो जो टिप्स ऑफ फिंगर्स है, टिप्स ऑफ फिंगर्स जिस डायरेक्शन में इंडिकेट कर, लाइक अभी अपवर्ड डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आप होगा। अभी आपकी तरफ इंडिकेट कर रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड आपके डायरेक्शन में होगा। मैंने इस डायरेक्शन में ऐसे फिंगर्स को पॉइंट किया, टिप्स को, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो टिप्स ऑफ फिंगर्स विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये पहला पॉइंट। सेकंड क्या है, जो थंब है वो क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो मैंने यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है इसको हम ले लेगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, है ना। तो हमारा कन्वेंशन क्या होगा, बेटर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, ठीक है। सो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। तो जिधर पाम फेस करेगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अब उस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या होता है। सो अभी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे, बराबर। अब क्या होगा, देखो लकीली ना इसमें ज्यादा आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, और ये थंब क्या है, ऑलरेडी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। palm is indicating which direction, palm is indicating in this direction, magnetic field is into the plane of paper, ऐसे है ना, fingers indicating in the direction of magnetic field, thumb is indicating in the direction of velocity, तो velocity ये है ना, velocity of positive charge particle। तो palm इधर फेस करा, इधर फेस करा, मतलब चार्ज पार्टिकल लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगा। तो अब ये ऐसे जाएगा ना, ऐसे जाएगा तो सडनली ऐसे थोड़ा डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे जा रहा तो लेफ्ट की तरफ क्या होगा, बेंड हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि क्या होगा उस केस में। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहां पे है वो लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगा एंड विल रीच टू दिस पर्टिकुलर प्लेस। जैसे पार्टिकल यहां पे पहुंचा तो हमने इमेजिन किया चलो चार्ज पार्टिकल इज टू दिस पर्टिकुलर प्लेस। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर फॉर दिस वन, इसके लिए वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, क्लियर। अब क्वेश्चन वही है कि व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, फिर सेम क्राइटेरिया, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, लेकिन अब वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन हो गया ना, अब चार्ज पार्टिकल इज ट्राइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन। देखो अभी ना पार्टिकल कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है, उस पर ही फोकस करना है। बाद में क्या होता है, वी आर नॉट बॉदर अबाउट दैट वन राइट नाउ, वो तो हम जब भी पाम रूल अप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा कि पार्टिकल किधर जा रहा है। तो राइट नाउ आपका फिंगर्स है इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी। तो पाम किधर फेस करा, पाम इज फेसिंग डाउनवर्ड, मतलब क्या होगा, ये पार्टिकल यहां जाने की बजाय डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो लेट्स सी कि अभी पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा। सो व्हेन द पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये कहां पहुंचेगा, यहां पहुंच गया, ठीक है। जब पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो आपने क्या किया, ये पोजीशन ले लिया, करेक्ट। अब यहां पे देखो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, इसके हिसाब से वेलोसिटी वेक्टर इज इन दिस डायरेक्शन, क्लियर। ये होगा वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन। अब फिर से देख लेते हैं यहां पे पाम रूल अप्लाई करके क्या होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड स्टिल इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, वही डायरेक्शन है, बट चार्ज पार्टिकल इज डाउनवर्ड, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अब पाम किधर फेस कर रहा है, पाम अब इस साइड फेस कर रहा है, राइट हैंड साइड में। तो अब क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल एस इस डायरेक्शन में मूव होते टाइम राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। एज आई सेड क्या फिर क्या करेंगे हम लोग, उसको डिफ्लेक्ट करेंगे उस डायरेक्शन में। अब चार्ज पार्टिकल आपका पहुंच गया यहां पे फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इस जगह के लिए हमने ले लिया इसका वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो दिस इज द वी वेक्टर। अब इस क्राइटेरिया का आगे सेम कि अगर हम यहां पे ले लें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और देखो वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज लाइक दिस। तो पाम किधर फेस करा अप, तो ये पार्टिकल इधर जाते जाते क्या होगा, वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली वी आर फाइंडिंग कि जब चार्ज पार्टिकल को आपने 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया हो तो ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हमेशा होगा कि कभी भी अगर आप चार्ज पार्टिकल को 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करोगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो चार्ज पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन।
दैट फिक्स कंडीशन। अब कहीं पे भी होगा चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री में प्रोजेक्ट हो गया, विल स्टार्ट सर्कुलेटिंग, चार्ज पार्टिकल सर्कुलेट होना स्टार्ट कर देगा, विल स्टार्ट परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ये पॉइंट हमारा क्लियर होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि वो सर्कुलर मोशन कौन प्रोवाइड कर रहा है। सो ये सर्कुलर मोशन आपने पाम रूल यूज किया, करेक्ट। तो पाम रूल में हम क्या फाइंड आउट करें, हम पाम रूल में फाइंड आउट करें डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये ना जो फोर्स है वो उसको सर्कुलर मोशन में या सर्कुलर पाथ में पुट करने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो सर्कुलर मोशन में जो फोर्स है ना, वो कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। तो आपको यहां पे बताना पड़ेगा कि मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज, किसके लिए, फॉर सर्कुलर मोशन। तो हम यहां पे एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस करते हैं। हमने क्या मेंशन किया कि सिंस मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स टू चार्ज पार्टिकल फॉर सर्कुलर मोशन, तो हमको पहले ना सेंट्रीपिटल फोर्स लेना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अच्छा कौन सा मैग्नेटिक फोर्स, देखो एक तो मैग्नेटिक फोर्स ये भी है, इनको नहीं लेना, वो कौन सा, ये जो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्ट हो रहा है ये मैग्नेटिक फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है इसके सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी विद व्हिच चार्ज पार्टिकल इज मूविंग, एंड r इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट। इसको ले लो आप क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हो गया, अगर आप इसका इमेजिन करो ये सेंटर है तो ये होगा रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। और जैसा भी हमने यहाँ पे देखा है कि मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज पार्टिकल फॉर सर्कुलर मोशन, तो सेंट्रीपिटल फोर्स मिला, तो हम लिख सकते हैं इस स्टेटमेंट की वजह से हम लिख सकते हैं देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर। अब देख लेते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या है फॉर्मूला। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv² अपॉन r, करेक्ट। एंड व्हाट्स द मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फोर्स, ये कौन सा मैग्नेटिक फोर्स उसको सर्कुलर मोशन में रख रहा है, जब वो 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट होगा, तो 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट होने पे मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू है qvb। तो आपने क्या किया, यहाँ पे q लिखा, v लिखा और ये b लिखा। अब ये v² यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो गया, तो अब r का वैल्यू क्या होगा, यू टेक r देयर, है ना, r इज इक्वल, यहाँ पे क्या होगा mv बचा है, बराबर, mv इज ओवर हियर, q विल कम इन डिनोमिनेटर, b विल आल्सो कम इन डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये आपको मिल गया रेडियस की वैल्यू, कि कितना रेडियस होगा वो आपको पता चल गया, है ना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। अच्छा, इस जगह पे आपने r की जगह पे आप v भी निकाल सकते थे, और qbr अपॉन n। अच्छा, यहां पे ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होता है, यहां पे वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और एक और चीज है, यहां पे जो वर्क डन होगी ना उसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी, है ना। वर्क डन की वैल्यू क्यों 0 होगी वो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे, बट राइट नाउ वेलोसिटी यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट, ये हमें पता होना चाहिए। तो अब इस हिसाब से अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या निकालना, हमको टाइम पीरियड निकालना। वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। तो अपना टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होता है, तो टाइम पीरियड अगर मैं ले रहा हूं, टाइम पीरियड होता है टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये क्या होगा, सरकमफेरेंस। टाइम पीरियड क्या होगा, सरकमफेरेंस। कौन सा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस ऑफ दिस ऑर्बिट या सर्कुलर दिस पाथ अपॉन क्या हो गया, वेलोसिटी। तो अब समझने के हिसाब से देख लेते हैं कि टाइम पीरियड होगा कैपिटल टी, सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, सरकमफेरेंस का वैल्यू होगा 2 पाई, ये r हो गया, अपॉन वेलोसिटी का वैल्यू v हो गया। इसको अगर लेना है तो आप इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर ले लो, इसको भी इक्वेशन नंबर 1 ले लो। क्यों, क्योंकि ना ये जो r दिख रहा है ना आपको, या तो r और या v, कोई भी एक कंडीशन ले लो, चॉइस आपकी अपनी है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास r भी दिख रहा है, हमको v भी दिख रहा है, तो मैं कोई भी एक वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो इसको मैंने ले लिया है इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे आप, पुट कर दो, किसको किसमें पुट करेंगे हम लोग, पुट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2। अगर वेलोसिटी पुट करते तो उसको इक्वेशन नंबर 1 लेके यहाँ पे पुट कर देते, किसी को भी पुट करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर वही आएगा। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, ये 2 पाई अपॉन v को मैंने वैसे ही रखा, नो वेरिएशन। r की वैल्यू क्या है, r का वैल्यू ना, तो उसके नेक्स्ट में मैंने r की वैल्यू रख दी, तो r का वैल्यू होगा mv अपॉन क्या होगा, ये qb हो गया। अब क्या क्या कैंसिलेशन हो रहा है, v विल कैंसिल विद v, एंड फाइनली टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या मिल रहा है हमको, 2 पाई m अपॉन हमको मिलेगा qb। ये हो गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला, करेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ फ्रीक्वेंट दिस थिंग्स विल हैपन, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी उसकी, 1 सेकेंड में हाउ मेनी टाइम इट विल कंप्लीट दिस सर्कल, या हाउ मेनी सर्कल इट विल कंप्लीट इन 1 सेकेंड, दैट पर्टिकुलर थिंग।
तो फ्रीक्वेंसी हो गया। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, करेक्ट। ये 1 अपॉन हो गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई m अपॉन क्यूबी। तो बोलने का मतलब ये होगा कि ये पूरी इक्वेशन जो है वो रेसिप्रोकेट हो जाएगी, क्यूबी अपॉन क्या हो जाएगा? ये 2 पाई m हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये हो गया फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर दिस सर्कुलर मोशन। सो ये पूरा डेरिवेशन हो गया टू अंडरस्टैंड व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनिशियली परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या होगा? ये कंडीशंस है। तो हमको इनमें क्या क्या याद रखना है? हमको याद रखना है रेडियस का फॉर्मूला mv अपॉन क्यूबी, और सेकंड टाइम पीरियड इज 2 पाई r अपॉन v, और फ्रीक्वेंसी क्यूबी अपॉन 2 पाई m। देखो ये क्वेश्चन कभी कभी ना थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी पूछते हैं। दे में आस्क क्वेश्चन लाइक ना, शो दैट द चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस एंड द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो अब देखो टाइम पीरियड जो होगा उसका ना, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड के फॉर्मूले में रेडियस नहीं आता, टाइम पीरियड के फॉर्मूले में वेलोसिटी भी नहीं आता। तो टाइम पीरियड एंड एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी का सेम कंडीशन, क्योंकि वो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। सो वेलोसिटी एंड रेडियस विल नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करता है? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जो हमने अप्लाई किया उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब क्वेश्चन ये होगा ना, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसे? मान लो अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन का मास अलग होगा, चार्ज अलग होगा। प्रोटॉन है तो चार्ज तो सेम होगा, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, बट उसका मास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में प्रोटॉन का मास क्या होगा? अलग होगा। हो सकता है अल्फा पार्टिकल हो, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी अलग होगा, मास भी अलग होगा इन कंपेयर टू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? तो उसके हिसाब से क्या होगा? आपका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी? चेंज होती रहेगी। अब किसी तो आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट हमेशा याद रखना है कि चार्ज पार्टिकल जब 90 डिग्री पे होगा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल जब 90 डिग्री पे होगा, तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को होगी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल विल बी एट 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन चार्ज पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो कहीं पे भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो आपको इजीली समझ जाना है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर को 90 डिग्री पे होगा। इज दैट क्लियर? अब हम आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो नाउ फॉर द थर्ड कंडीशन यू कैन सी व्हेन इनिशियल वेलोसिटी मेक्स आर्बिट्ररी एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, दिस पर्टिकुलर टर्म का मतलब क्या होता है? आर्बिट्ररी एंगल का मतलब क्या होता है कि एट एनी एंगल, कोई भी एंगल हो सकता है बिटवीन 0 to 90, 0 to 90 के बीच में कोई भी एंगल आप ले लो, ये चल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होता है कि यहां पे हमने क्या किया, बेसिकली हम क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया, यहां पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है। हमने क्या किया, यहां पे जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको हमने एक एंगल पे ले लिया विद मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, नाइदर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर ऑपोजिट टू दैट वन। तो 0 का भी ऑप्शन नहीं है, 180 का भी ऑप्शन नहीं है, थर्ड वन 90 डिग्री का भी ऑप्शन नहीं है। तो मतलब 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री में से कोई भी एंगल सेलेक्ट कर लो, बट इट शुड नॉट बी विद इन दैट विच आई सेड ना 0 to 90। वैसा 0 to 90 मतलब 0, 90 एंड 180 के अलावा कोई भी एंगल आप ले सकते हो। इज दैट क्लियर? सो अब क्या होता है यहां पे प्रॉब्लम की, जब हमने ये कंडीशन लिया है तो मैग्नेटिक फोर्स तो हमको मिलेगा इस केस में, बट अभी क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फोर्स कैसे मिलेगा जब ना 0 डिग्री 180 डिग्री के लिए मैग्नेटिक फोर्स होगा नहीं, जब 90 डिग्री है तभी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, उसको सर्कुलर मोशन में रखेगा। हो सकता है अदर एंगल के भी फोर्स ऑफ एक्ट होगा, जैसा कि आपको याद होगा ना क्यूबी साइन थीटा, थीटा का वैल्यू अगर होगा तो फोर्स एक्ट होगा, तो फोर्स एक्ट हो रहा है। बट हमने अब तक ना बाकी एंगल के लिए नहीं स्टडी किया, हमने इसके लिए 0 के लिए, 180 के लिए और 90 के लिए स्टडी किया। तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें से किसी 90 डिग्री में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, 90 डिग्री और 0 डिग्री के हिसाब से। अगर 0 डिग्री है तो नो फोर्स एक्टिंग, 90 डिग्री है तो फोर्स विल एक्ट। तो क्या हमें ऑप्शन दिख रहा है कि ये जो ना V है ना, V इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप लिखोगे यहां पे क्या है, V रिजॉल्व्स इनटू, तो V को आप रिजॉल्व करोगे तो कैसे रिजॉल्व होगा, दैट पर्टिकुलर पार्ट विल सी। तो V रिजॉल्व्स इनटू V sin थीटा एंड V cos थीटा। सो V रिजॉल्व्स इनटू V sin थीटा एंड V cos थीटा। क्लियर? तो अब डायग्राम में भी दिखा देते हैं, V sin थीटा की जगह V cos थीटा होगा, तो दिस कंपोनेंट इज अटैच टू थीटा, तो ये कंपोनेंट का नाम हो जाएगा V cos थीटा। क्लियर? ये हो गया आपका V cos थीटा। क्लियर? और ये जो यहां पे आपने इसको रिजॉल्व किया जो इस डायरेक्शन में, ये क्या हो गया, ये हो जाएगा V sin थीटा। क्लियर?
अब इसमें भी दो चीजें मुझे दिख रही है, जो v cos थीटा ना, मैग्नेटिक फील्ड को क्या है, अलोंग द सेम लाइन है ना मैग्नेटिक फील्ड के लाइन में, तो ये पैरेलल हो जाएगा, ये हो जाएगा v पैरेलल, उसको हमने ले लिया। मतलब ये क्या होगा, ये वेलोसिटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी करेक्ट जो v sin थीटा मिला, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके लिए मैं यहां पे करूंगा v परपेंडिकुलर। क्लियर? तो अभी क्या होगा, v रिजॉल्व्स इनटू v sin थीटा एंड v cos थीटा। तो अभी आप बताओगे, जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि v परपेंडिकुलर इक्वल v sin थीटा, ये कहां पे एक्ट होता है, इज परपेंडिकुलर टू b। क्लियर? और जो दूसरा है वो क्या है, v पैरेलल, विच इज व्हाट, v cos थीटा, ये क्या है, इज पैरेलल टू b। क्लियर? सो अब यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि ये परपेंडिकुलर टू b है, इसका मतलब होगा थीटा का वैल्यू यहां पे क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये जो v sin थीटा वेलोसिटी है या v परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, इट इज मेकिंग 90 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये क्या करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। बट इस केस में क्या होगा, पैरेलल वाले में यहां पे थीटा का वैल्यू क्या होगा, दिस केस में थीटा का वैल्यू इज व्हाट, 0। ठीक है? सो अब आप बताते हो कि जो चार्ज पार्टिकल होगा, बिकॉज ऑफ v cos थीटा इट विल एक्सपीरियंस नो फोर्स, बट बिकॉज ऑफ v sin थीटा इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। या बता दो विल एक्सपीरियंस फोर्स, वैसे भी बता सकते हो। तो आप लिखोगे देयरफॉर ड्यू टू v cos थीटा, ड्यू टू v cos थीटा charged particle experiences no force, but due to v sin theta charged particle will experience force and will perform circular motion. So जैसे जनरली जो फोर्स का वैल्यू होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लिखोगे सिंस हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू, ये क्या है, Q होगा, जो वेलोसिटी है वो v वेक्टर है, v परपेंडिकुलर है। ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड b हो गया, हमने क्या लिया यहाँ पे साइन थीटा लिया है, बट ना थीटा का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द थीटा ऑफ v परपेंडिकुलर विद मैग्नेटिक फील्ड, तो v परपेंडिकुलर विद मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग व्हाट, 90 डिग्री एंगल। करेक्ट? तो थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा, तो जो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी 1। सो व्हाट विल हैपन टू द फोर्स, सो होगा F इज इक्वल टू Q v परपेंडिकुलर b। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? तो ये क्या है ना, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा। ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, दिस मैग्नेटिक फोर्स विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज पार्टिकल। करेक्ट? सो आपको अगर मेंशन करना तो आप मेंशन कर सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू v परपेंडिकुलर विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स टू चार्ज पार्टिकल, और किसके लिए, टू चार्ज पार्टिकल फॉर सर्कुलर मोशन। ये डेरिवेशन अगर आपको लग रहा होगा ना, पहले वाले इसके काफी सिमिलर रहा, जो इसके पहले हमने किया हुआ था, ये काफी हद तक उससे मैच होता जा रहा है। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा कंडीशन। सो अगर हम उसके हिसाब से ले रहे हैं, तो क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा हो गया कि अब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है? तो अभी आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर ना? नाउ इट विल हैव अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का, मास m है, बट कौन से वेलोसिटी को सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा, ये परपेंडिकुलर वाले को, v परपेंडिकुलर। तो v परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ये r हो गया। ठीक है? और आपको पता है कंडीशन के हिसाब से, उन्होंने कंडीशन में क्या दिया कि मैग्नेटिक फोर्स ही है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो अभी आप लिख सकते हो देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी जगह नहीं तो मैं ऐसे लिखा, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर? तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, m है, v परपेंडिकुलर है, स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ये r हो गया, इज इक्वल टू, एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर मैग्नेटिक फोर्स, ये है मैग्नेटिक फोर्स जो उस वक्त पे एक्ट हो रहा होगा, तो q v परपेंडिकुलर b। तो ये v परपेंडिकुलर वेलोसिटी विल कैंसिल विद दिस वन। तो ये पहले वाले डेरिवेशन जैसा ही है, r यहां पे होगा, बाकी वैल्यूज यहां पे आ गए। तो क्या होगा, r इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा m v परपेंडिकुलर अपॉन क्या मिलेगा, q b मिलेगा। समझ में आ रहा है? और अगर इसको थोड़ा और आगे एक्सटेंड करना, मान लो एंगल के टर्म में अगर आपको निकालना है ना, क्योंकि v परपेंडिकुलर तो कोई वैल्यू होगी ना, बट आपको जो एक्चुअल में वैल्यू दिया रहेगा वो v दिया रहेगा, एंड देन एंगल दिया होगा, तो v परपेंडिकुलर तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपने निकाल लिया तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर आपने v परपेंडिकुलर नहीं निकालना था, तो डायरेक्टली v के टर्म में निकालना, तो क्या करोगे, एज फार वी अंडरस्टैंड v परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, v sin थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या हो गया, ये m हो गया, v sin थीटा हो गया अपॉन क्या हो जाएगा, ये q b हो जाएगा।
गॉट इट? हाँ, लेकिन क्या है, इसको हमने ले लिया यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1, वो और पार्ट में लिखो बेटर होगा। हम अब क्या निकालेंगे? टाइम पीरियड निकालेंगे। टाइम पीरियड का क्या क्राइटेरिया है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला, प्रीवियस फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी। तो सर्कमफेरेंस क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे जो सर्कुलर मोशन को उसका रेडियस हम मान ले रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने ना डायग्राम नहीं ड्रॉ किया है, सॉरी फॉर दैट। ये 2 पाई आर अपॉन वी है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? ये 2 पाई अपॉन वी हो गया, आर का वैल्यू हमने क्या लिखा? अच्छा, ये वी क्या होगा? वी परपेंडिकुलर होगा, तो क्या एम वी परपेंडिकुलर अपॉन क्या है? ये क्यू वी है, और क्या वी परपेंडिकुलर, वी परपेंडिकुलर कैंसिल। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी मिलेगा, तो हमको टाइम पीरियड मिल गया। और फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला है? फ्रीक्वेंसी है 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो ये पूरा इक्वेशन क्या होगा? रेसिप्रोकेट हो जाएगा, तो क्यू बी अपॉन क्या होगा? ये 2 पाई एम। तो अगर आप नोटिस करोगे एक चीज, तो जो टाइम पीरियड है ना, टाइम पीरियड वो अभी भी क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी एंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। क्लियर? और ये फ्रीक्वेंसी का भी सेम क्राइटेरिया है। अब हम यहाँ पे बार बार डिस्कस करें सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, बट कैसे सर्कुलर पाथ मिल रहा है? क्योंकि मैंने डायग्राम में कहीं तो दिखाया नहीं है। अब अगर ये प्रॉपर्ली 90 डिग्री का सर्कुलर पाथ होता, बट ये प्रॉपर 90 डिग्री तो है नहीं, तो ये क्या कह रहे हैं कि जैसे आपको दो मिला यहाँ पे, वी पैरेलल मिला और वी परपेंडिकुलर। वी पैरेलल की वजह से कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा उसके ऊपर ना, नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट, ठीक है। सो अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप दूसरे फ्रेम में जाओ, ये परपेंडिकुलर, तो बोले कि आप ना पाम रूल अप्लाई करो, राइट हैंड पाम रूल, एंड सी की क्या होता है। तो एक चीज है कि ये मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया और ये बी परपेंडिकुलर, ये वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल क्या करेगा? सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, बिकॉज दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो एनी हाउ पार्टिकल इज गोइंग टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो तो फिक्स हो गया। बट सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के साथ में क्या होता है कि देखो यहां पे प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जब ना पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो वी परपेंडिकुलर, देखो वी परपेंडिकुलर क्या चाहता है कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे, ठीक है। एट द सेम टाइम ना जो वी पैरेलल है ना, वी पैरेलल, वो क्या चाहता है कि पार्टिकल आगे भी बढ़े। ये भी तो वेलोसिटी है, ये भी इस वेलोसिटी की वजह से भी तो पार्टिकल को कुछ तो मोशन मिलेगा। पार्टिकल विल हैव वेलोसिटी इन 2 डायरेक्शन, और उसको दोनों डायरेक्शन में मोशन मिलेगा। वी परपेंडिकुलर की वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो पार्टिकल इज इन मोशन अबाउट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल और अबाउट अ सर्कुलर पाथ, वी परपेंडिकुलर की वजह से। बट वी पैरेलल की वजह से पार्टिकल विल ट्राई टू गो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब क्या होगा? ये सर्कल परफॉर्म करने के बाद क्या होगा? ये थोड़ा आगे बढ़ता रहेगा। तो यहां पे होता कैसा है कि ये पार्टिकल यहां पे हो गया, मान लो कि ऐसे कंप्लीट किया होगा इसने, तो फिर क्या होगा? यहां पर थोड़ा सा आगे निकल गया, फिर क्या, थोड़ा सा आगे निकल गया, फिर थोड़ा सा आगे निकल गया। तो एवरी सर्कुलर पैटर्न पे क्या होगा? एक सर्कल के बाद वो थोड़ा सा शिफ्ट होता रहेगा। गॉट इट? अब हमें ये देखना है कि वो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है ना। मेन पार्ट इज द डायग्राम। तो अब देख लेते हैं, ये है हम फ्लेमिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, या नहीं तो आप राइट हैंड पाम रूल आप यूज कर सकते हो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम यूज कर नहीं रहे हैं, तो उस पर हम फोकस नहीं करेंगे, हम पाम रूल कर रहे हैं। तो पाम रूल पे देखते क्या करना। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करेक्ट। वेलोसिटी का जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, तो ये है, ये वेलोसिटी है। तो ये फोर्स किधर एक्ट हो रहा है? फोर्स एक्ट हो रहा है अंदर की तरफ, क्लियर। फोर्स इज एक्टिंग इनसाइड की तरफ। तो आप समझने के हिसाब से देखो, तो अगर ये है आपका एक्स एक्सिस, बराबर, और आपका जो है इस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, मतलब कि जैसे पार्टिकल ना वाई एक्सिस पे ऐसे है, बराबर, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो मतलब हमने ऐसे लिया, बराबर। तो अब पाम इस साइड में फेस कर रहा है, तो क्या पार्टिकल जो ऐसे जा रहा है, जो वी परपेंडिकुलर की वजह से, वो ऐसे जाके सर्कुलर मोशन से परफॉर्म करेगा। तो एज फार वी नो कि 90 डिग्री हो गया, सर्कल बनाएगा ही, तो फिर क्या होगा? ये सर्कल बनाते हुए कैसा थोड़ा सा आगे निकलते चला जाएगा। सो ये क्या कह रहे हैं कि अब जब ये पार्टिकल ऐसे जाएगा, ये पार्टिकल यहां पहुंच के फिर इस तरह से सर्कल बनाएगा, करेक्ट। ये इस तरह से ये सर्कल बनाते हुए ये क्या करेगा? पार्टिकल विल कीप मूविंग अहेड। जो ये ऑर्बिट होगा ना, उसका जो रेडियस का वैल्यू है सेम होगा। हाँ, ये थोड़ा सा मेरे डायग्राम में छोटा बड़ा दिख रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये जो ऑर्बिट का रेडियस होगा दैट हैज टू बी सेम, वो कम ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहां पे भी थोड़ा सा डाउन। हाँ, अब इसको अगर मुझे डायग्राम बनाना है, तो ये क्या है? ये ऐसे ना, ऐसे जाके फिर तो ये एरो ऐसे ले लिया आपने, ये इनसाइड वाला पार्ट है, तो उसको आप डॉटेड से रिप्रेजेंट करो। यहाँ पे ऐसे ये आउटसाइड वाला पार्ट है ना, तो आपको फील आता रहेगा कि कैसे ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको मिलेगा। ये कैसा होगा? ये हेलिकल पाथ हो गया, दिस इज कॉल्ड द हेलिकल पाथ, ठीक है। ये हेलिकल पाथ को परफॉर्म करेगा। अब क्या होगा? ये ना जो ये साइज है ये सेम रहना चाहिए, ये आगे जाते जाते मेरा जो है ना ये स्मॉलर में बना दिया मैंने,
सॉरी फॉर दैट, बट ये ऑर्बिट के साइज में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये यहां पे, हाँ, अब क्या है पॉइंट, समझ वाली बात ये है कि ये सारी चीजें तो ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ना वन टाइम पीरियड में या वन रेवोल्यूशन में जब वो एक बार रिवॉल्व होता है कितना शिफ्ट होगा, जैसा भी ये है यहाँ पे एक साइकिल जब भी परफॉर्म करेगा तो वो कितना आगे शिफ्ट होगा, वो भी तो निकालना है ना आपको। कि जैसे अभी यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे था तो ये इसने क्या किया, एक सर्कल परफॉर्म किया तो अभी यहाँ पे आ गया, फिर नेक्स्ट सर्कल परफॉर्म किया तो यहाँ पे आ गया, फिर नेक्स्ट सर्कल बाद परफॉर्म किया तो यहाँ पे आ गया। तो वन सर्कल कंप्लीट करने के बाद वो कितना शिफ्ट होता है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम बोलते हैं पिच। वो जो डिटेल है उसको हम बोलते हैं पिच। तो पिच क्या होता है, पिच इज अ लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वन टाइम पीरियड, ठीक है। यहां पे देख लेते हैं ये क्या हो गया, हमारे पास एक टर्म है विच इज कॉल्ड द पिच। तो अभी पिच क्या हो गया, पिच इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय चार्ज पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड ड्यूरिंग revolution, during circular motion or during revolution, during revolution due to v parallel, that is v cos theta। अब ये जो शिफ्ट है ना, linear distance traveled by charged particle in one time period during revolution due to v parallel, that is v cos theta। v cos theta की वजह से कितना शिफ्ट होगा वो, अच्छा टाइम पीरियड ड्यूरिंग रेवोल्यूशन, ये जो टाइम पीरियड है ना ये किस वजह से, वो v परपेंडिकुलर की वजह से, और जो शिफ्ट है वो किसकी वजह से, v पैरेलल की वजह से। तो अब आप बताओगे कि ये डिस्टेंस हो गया ना, एक हिसाब से देखो तो डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो कौन से स्पीड से शिफ्ट हो रहा है, v पैरेलल से शिफ्ट हो रहा है, कितने टाइम में, वन टाइम पीरियड में। तो v पैरेलल की वैल्यू हमने क्या लिया है, v cos थीटा लिया है, और टाइम पीरियड का वैल्यू क्या है, वो है 2 पाई m अपॉन क्या है, qb है। अब इसी को हम अरेंज कर लेंगे, तो वे वी आर अरेंजिंग दिस इक्वेशन, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर इट इज 2 पाई mv cos थीटा अपॉन क्या होगा, ये qb हो गया, ठीक है। ये किसका वैल्यू हो गया, ये हो गया फॉर्मूला फॉर द पिच। तो अब इसमें जो समझने वाली बातें हैं वो ये देखना आपको कि अगर मान लो ऐसे केस में रेडियस पूछा है तो ये फॉर्मूला mv sin थीटा अपॉन qb, मान लो कि ना आप mv परपेंडिकुलर अपॉन qb भी लिख सकते हो, बट क्या v परपेंडिकुलर आपको इंडिविजुअली कन्वर्ट करना पड़ेगा। v sin थीटा रख के v परपेंडिकुलर निकाल के फिर आप यहां पे पुट कर दो। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m अपॉन qb, कोई फर्क नहीं पड़ता, भले वो 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट हो या एनी एंगल पे प्रोजेक्ट हो, टाइम पीरियड पे और फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस पे पड़ेगा आपका, फर्क पड़ेगा जो रेडियस ऑफ ऑर्बिट है उस पे फर्क पड़ेगा, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फर्क पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ना ये मास है, ये चार्ज है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी होने के बाद भी क्या होगा, साइन थीटा से मल्टीप्लाई होके वो वैल्यू चेंज होगा। तो आप इतना समझना, कभी भी 90 डिग्री पे अगर चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट होगा तो रेडियस ज्यादा होगा, जब वो ना किसी एंगल पे प्रोजेक्ट होता है तो जो सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा स्मॉलर होगा। मान लो अगर 90 डिग्री में हो सकता था ना, इससे बड़ा सर्कल हमें मिलता था, बट अभी जब ये किसी और एंगल पे प्रोजेक्ट होगा तो सर्कल जो होगा बनेगा वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, सर्कुलर जो रेडियस होगा वो स्मॉलर बनेगा, ठीक है। और आपको अगर रेडियस इंडिकेट करना है तो आप ऐसे इंडिकेट कर सकते हो, यहां से यहां तक ऐसे इंडिकेट कर दो, ये हो गया r। I hope whatever I explained you people understood. These topics are very simple, not that very complicated. इनके लिए बस आपको ध्यान रखना है कि राइट हैंड पाम रूल किस तरह से हमें अप्लाई करना है, ठीक है। आज जो हमने लर्न किया उसमें तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर वो पैरेलल एंटी पैरेलल है, मतलब जीरो एंगल हो, 180 डिग्री एंगल हो, तो चार्ज पार्टिकल कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर चार्ज पार्टिकल, जो दूसरा पॉइंट है, चार्ज पार्टिकल को अगर आप 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट करते हो या किसी और एंगल में प्रोजेक्ट करते हो अदर देन 0, 90 एंड 180, तो उस केस में क्या होगा, पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, दोनों केस में परफॉर्म करेगा। बट 90 में क्या होता है, प्रॉपर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, फिक्स उसका क्या होगा, ऑर्बिट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। बट दूसरा है जब भी आप ना 0, 180, 90 के अलावा किसी एंगल पे आप प्रोजेक्ट करते हो तो इट विल परफॉर्म और इट विल फॉलो द हेलिकल पाथ, ठीक है। और उसका जो है डिस्टेंस अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होता रहेगा, डिस्टेंस ट्रैवल विल कीप इंक्रीजिंग और सर्कुलर पाथ तो रहेगा ही। Once again, I hope whatever I explained you people understood. Thank you very much.